آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے حالانکہ حق جانتا ہے۔ یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، یہ سب کمائی کے دھندے ہیں، سب ڈالر کا چکر ہے۔ آج یزیدی ٹولا تو اس کو جنتی مانتا ہے، سب ڈالر کا چکر ہے، سب ڈالر کا چکر ہے حالانکہ حق جانتے ہیں۔ ہلو، اقبال انصاری دیوبندی صاحب بول رہے ہیں؟ ہلو، اقبال انصاری صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی میں اختر نظامی بات کر رہا ہوں چنئی سے۔ اختر نظامی بات کر رہا ہوں چنئی سے۔ جی ایک ڈاؤٹ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب جو کتاب لکھے ہیں حفظ الایمان میں، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوان و بہائم کے لیے بھی حاصل ہیں۔ کہا کر کے یہ تو گستاخی ہوئی نا۔ ایسا علم غیب تو زید بکر کے لیے بھی ثابت ہے۔ اس کی آپ تھوڑا وضاحت کر دیں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ بعد میں ذرا کھانا کھا رہا تھا۔ جی تو تھوڑا آپ کیا ایسا ہی آپ کا عقیدہ ہے کہ ایسا علم غیب تو یہ تو بہت بڑی گستاخی کر بیٹھے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو، علم غیب کو، ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے کہہ کے تشبیہ دے دیے نا۔ کردہ میں بات ہے، ابھی ذرا کھانا کھا رہا تھا۔ جی بیٹھے لے کھانا کھا رہا تھا ذرا، میں ساتھی بیٹھے لے ساتھ میں۔ جی تھوڑا وضاحت کر دیتا تو اچھی بات رہتی ہے۔ ابھی کھانے میں جسٹ اٹھا ہے، میں دیکھا کس کا فون ہے معلوم نہیں۔ تو آپ کرتا میں آپ سے بات۔ جی اس کو بتا دیجئے تھوڑا مہربانی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولیے سید صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیے۔ کھانا پینا ہو گیا؟ جی الحمدللہ۔ تو فون کیے تھے، کوئی یاد کیے تھے؟ ہاں حضرت فون کیا، پھر ایک بھائی کا فون آیا، بھول رہے میں آپ کو فون کرنا۔ خیر کوئی بات نہیں جی۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے نا، تو میں تو مالک ہی کہوں گا، تو مالک حبیب خدا، یعنی محبوب میں نہیں تیرا میرا، اس کا کیا مطلب ہے حضرت؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہے نا، اور اسے دیا ہے اور اس کو مالک بنایا ہے اللہ رب العزت نے۔ جی اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے میرے جان و مال کے آپ ہی مالک ہو۔ جی تو وہ اللہ کی عطا سے کہتے تھے، ہم لوگ بھی اللہ کی عطا سے کہتے ہیں۔ جی ایسے نہیں کہ ہم لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نعوذ باللہ من ذالک نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب سمجھتے ہیں۔ جی ہاں سمجھے؟ اور اللہ کی عطا سے ان کو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کو جو نعمت دیا ہے اس کا خوب چرچا کرو، ہے نا۔ جی ہاں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ جی ہاں سمجھے؟ تو ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی دیکھیے گا اللہ رب العزت نے اتنی بڑی زمین کو بنایا، ٹھیک، آسمان بنایا، چاند ستارے سورج بنایا، انسانوں کو بنایا، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے نا۔ جی ہاں لیکن کہیں پر بھی قرآن میں نہیں کہا کہ اے انسانوں میں تمہارے لیے ہوا بنا دیا، پانی بنا دیا، تمہاری جان پیدا کر دیا، تم کو عورت مرد بنایا، تمہارے لیے گھر بار بنا دیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، سورج بنا دیا، تم کو روح دیا، جان دیا، آنکھیں دی، روشنی دیا۔ کہیں پر احسان نہیں جتایا اللہ تعالیٰ۔ لیکن اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو جب اس دنیا میں بھیجنے لگا، جب بھیجا تو قرآن میں اعلان
किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, मैं अपने महबूब को भेजकर मोमिनों पर एहसान किया हूँ। कहा बताइए। जी हाँ हाँ जी। बताइए, पूरी दुनिया को एक तराजू में रख दीजिए और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तराजू में रखिए तो सारी दुनिया से भारी नेमत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते थे, मुस्नद अहमद शरीफ की हदीस में आता है, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानो माल के आप मालिक हो। जी सहाबे कराम का अकीदा ये था, जो सहाबी का अकीदा वही सुन्नियों का अकीदा है ना। लेकिन सहाबी के खिलाफ ये वहाबी हैं, समझे। क्या कहता है तक़वियतुल ईमान में, तो जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं। जी हाँ और वो मर के मिट्टी में मिल गए, नौज़ुबिल्लाह। ये देवबंदियों का अकीदा है और उसका इमाम कहते हैं उसको, इस्माइल देहलवी को। और इस्माइल देहलवी जो मर गया तो आला हजरत ने उस पर खामोशी अख्तियार की। क्यों? इसलिए कि उस वक्त उनको खबर मिली कि वो तौबा करके मरा है, तो शुबहा जिस पर होते हैं उस पर फतवे आयद नहीं किए जाते हैं। मुहतातीन मुफ्तियान किराम, यही उसूल है शरीयत का। इसलिए आला हजरत ने ना उसको मुसलमान कहा ना ही उसको काफिर कहा, लेकिन उसकी तहरीरात जो हैं उसे कुफ्र है कहा करके। जी हाँ। अब वहाबी लोग उसको क्या कहा है, वो तक़वियतुल ईमान जिस पर कुफ्र लिखी भरी पड़ी हुई, तकरीबन 150 से ऊपर कुफ्रिया अल्फाज हैं उसमें तक़वियतुल ईमान में। तो उसको क्या कहा, ये देवबंदियों के कुतुबुल इरशाद है, फतवा रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही, जिसको गौसे आजम देवबंदी कहते हैं। वो कहते हैं तक़वियतुल ईमान का पढ़ना रखना आईने इस्लाम है। बताइए, यानी उसके बगैर इस्लाम कबूल नहीं होगा। आईनी इस्लाम किसको कहते हैं? यानी जिसके पास वो चीज है वो इस्लाम में दाखिल है, और जो उसके पास जो वो चीज नहीं है तो इस्लाम में दाखिल नहीं है, खारिज है। जी हाँ। तो इतने दर्जा दिया उसको, माजल्ला, यानी तक़व्वुल ईमान से इस्लाम है। माजल्ला। हाँ, देखिए ये देवबंदियों का अकीदा, और उसमें ये चीज लिखा हुआ है कोई चीज का मालिक नहीं है, वो कोई चीज का मुख्तार नहीं। बताइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मालिक मुख्तार कह रहे हैं, हमारे मालिक कह रहे हैं, और अख्तियार वाला जान रहे हैं सहाबी लोग, लेकिन वहाबी ये सहाबी के खिलाफ हो गए। माशाअल्लाह। हमारा अकीदा सहाबा किराम के अकीदे पे बनाना चाहिए, ना कि वहाबी के तरीके पर। जी बहुत सारी गुस्ताखियां की कर के इन देवबंदियों का अक्ल को भी अशरफ अली थानवी तो बोल करके चला गया, लिख करके भी मर गया। अक्ल को कैसे तस्वीर दिया वो उन लोगों का अकीदा। अवाम का अकीदा तो ऐसा है जैसे गधे के अज़्वे तनासुल। बताइए, ये मुजद्दिद का काम है। वो कौन वो शैतान को मुजद्दिद कौन कहता है? अवाम की अक्ल को, अक्ल जानते हैं जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की अक्ल, मुसलमानों की वो नूर है कह करके। माशाअल्लाह, वो नूर अक्ल क्या है? तमाम जिससे भी जो आलिम है उससे पूछिए कि अक्ल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल क्या फरमाए, तो वही बताएंगे कि वो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने फरमाया है अक्ल नूर है। और वही नूर को अशरफ अली थानवी गधे के अज़्वे तनासुल की मिसाल बता रहा है। और वो भी किसके अक्ल को? अपने अवाम के अक्ल को। यानी कौन अवाम है उसके? देवबंदी है। और देवबंदी लोग उसको मुजद्दिद, हकीमुल उम्मत, हमारे हकीमुल उम्मत है वो। इन देवबंदियों का अक्ल वाकई में गधे के अज़्वे तनासुल के जीता है। बताइए, उतनी बड़ी गुस्ताखी करके मरा वो अशरफ अली थानवी। हाँ, वो तो बहुत वो हिफ्जुल ईमान में लिखा है ना जी। जी हिफ्जुल ईमान में जो इबारत लिख करके वो मर गया। जी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म शरीफ को तशबीह दे करके। माशाअल्लाह। जी हाँ, सुने हैं ना? जी हाँ, सुना हो तुम्हें।
क्या लिखता है सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ कि किताब को खोल दे रहा हूँ जी हिफ्जुल ईमान सफा नंबर 15 है जी क्या है, सफा नंबर 15। जी जी इसमें लिखा है फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल जैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अम्र है। यानी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल? वो कुल तो कोई नहीं मानता। अगर बाज उलूमे गैबिया मुराद हैं, यानी जो बाज है दिया जो बाज, तो उसमें इसमें हुजूर साद लिखा है, बदबख्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखने की तौफीक नहीं हुई इसे। हुजूर साद की ही क्या तखसीस है? ऐसा इल्मे गैब तो जैद अमर बल्कि हर सबियो मजनून बल्कि जमी हैवान व बहाइम के लिए भी हासिल है कह के लिखा है। इतनी गुस्ताखी की, और ये गुस्ताखी को हल करने के लिए कौन चला था? इनके टांडवी सरकार और गालियों वाले सरकार कहते हैं टांडवी को, गालियों वाले सरकार कहते हैं इनको, वकला लोग, खबीस वकील लोग है ना। जी हाँ, वो दफा करने के लिए किताब लिखना शुरू किया। क्या ये अशरफ अली थानवी हमारे मुजद्दिद हैं और ऐसे लिख करके मर गए ना, क्या करना इसको बचाने के लिए कहा करके, तो वो सब एड़ी चोटी का जोर लगाया। और पहला वकील गालियों वाली सरकार जिसको कहते हैं असहाबु साकिब में तकरीबन 350 गालियां आला हजरत को दिया है वो। अल्लाह अकबर। इतना बदबख्त को हकीमुल इस्लाम कहता है ये लोग, शेखुल इस्लाम कहता है किसको? देवबंदी शेख टांडवी हुसैन अहमद साहब नाम है इसका। लिखता है हजरत मौलाना थानवी के बारे में, हजरत मौलाना लफ्ज ऐसा फरमा रहे हैं, लफ्ज इतना तो नहीं फरमा रहे हैं। अगर लफ्ज इतना होता तो उस वक्त एहतमाल होता माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को और चीजों के बराबर कर दिया। ये लिखा है असहाबु साकिब सफा नंबर 281 में। और आगे लिखता है असहाबु साकिब सफा नंबर 283 में क्या लिखता है? लफ्ज इतना नहीं कहा कौन? अशरफ अली थानवी, बल्कि तशबीह फकत बाज में दे रहे हैं, है ना। इस इबारत से वाज़े है कि लफ्ज ऐसा यहाँ इतना के माने में नहीं, क्योंकि ये माना कुफ्र है। इतना के माना में होता तो कुफ्र है, मैं भी कुफ्र कहता हूँ कह करके ये वाज़े किए हैं गालियों वाले सरकार शेख टांडा हुसैन अहमद शेखुल इस्लाम देवबंदियों के। तो वो ये कहते हैं कि लफ्ज इतना तो नहीं कहा है ना, ऐसा कहा है, वो बाज में तशबीह दिया है। लेकिन एक दूसरे वकील जो इन लोगों के दूसरा वकील है मुर्तजा हसन देवबंदी, है ना, ये थानवी की सफाई करते हुए कुफ्र को धोने की कोशिश में क्या लिखता है देखिएगा। वाजे हो के ऐसा का लफ्ज फकत मानिंद और मिस्ल के माने में मुस्तमल नहीं होता, बल्कि उसके माने इस कदर है और इतने के भी आते हैं जो यहाँ मुतय्यन है, यानी हिफ्जुल ईमान में मुतय्यन है। लफ्ज इतने इस कदर के माने में है वो कह कर बोल रहे हैं। अगर वजह तकवीर की तशबीह इल्म नबवी व इल्म जैद व अमर व बकर है तो ये इस पर मौकूफ है कि लफ्ज ऐसा तशबीह के लिए हो कह रहे हैं। हालांकि यहाँ गलत है और अलावा गलत होने के मोहताज है हज़्व कलाम बल्कि मस्ख कलाम का। और एक मकाम पर और लिखता है इबारत मुतनाज़ा फी में लफ्ज ऐसा बमानी इस कदर और इतना है। फिर तशबीह कैसी? अगर तशबीह होता तो मुर्तजा हसन के सामने वो गुस्ताखी है, लेकिन शेख टांडा गालियों वाले सरकार हुसैन अहमद साहब कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि वहां पर लफ्ज इतना के माने में है, और अगर लफ्ज वो क्या लफ्ज इतना होता है तो गुस्ताखी होती करे, और वही लफ्ज को ये हुसैन अहमद कर लफ्ज ऐसा अगर तशबीह होती तो गुस्ताखी है कहा करके, और वो लिख रहा है लफ्ज ऐसा है ना,
इसलिए गुस्ताखी नहीं है, इतना इस कदर के माने में नहीं है, तो इसलिए हम भी समझते हैं उसको कुफ्र। लेकिन कह रहा है ये दोनों में मुतजाद बयान हो रहा है। तांडवी और दरभंगी के इबारत का ये खुलासा ये है कि थानवी की इबारत में लफ्ज ऐसा, इस कदर और इतना के माने में लेते हैं, जैसा कि दरभंगी ने कहा है, तो ये तांडवी के नजदीक गुस्ताखी और कुफ्र है। और अगर लफ्ज ऐसा तशबीह के लिए हो जैसा कि तानवी ने कहा है, तो दरभंगी के नजदीक गुस्ताखी और कुफ्र है। तो थानवी के अपने वकला ही इस इबारत को गुस्ताखी कर रहे हैं जनाब जी। तो ये गाड़ी वाले जो आपने जो भी नाम लिया ना, ये जो अपने किताब जो साहब हसन, जी हाँ, तो ये जो इमाम अहमद रजा के जमाने से बारिश से पहले, हाँ, उसके बाद ही है, यानी आला हज़रत उस टाइम पे फतवा दे चुके थे। और फतवा आने के बाद, हुस्सामुल हरमैन आने के बाद ये सफाई देने की कोशिश की है, लेकिन जितनी भी सफाई देने की कोशिश की है उतना ही और ये दोनों उलझा करके दोनों क्या किए, उसको मरघट में उतार दिया थानवी को, और उसके कुफ्र में सील मार दिया। एक तो कह रहा है कि लफ्ज ऐसा तशबीह के लिए है, और दूसरा कह रहा है चांद पूरी कह रहा है तशबीह के लिए होता तो गुस्ताखी है, और इतना के माने में है। शेख टांडा कह रहे हैं इतने के माने में है, और शेख ये चांद पूरी कह रहा है इतना के माने में ही है। वो जिसको वो कुफ्र कह रहा है उसको ये ईमान बता रहा है, जिसको ये ईमान बता रहा है उसको वो कुफ्र कह रहा है, कुफ्र मानता है। तो दोनों मुतजाद पाए गए हैं। इसलिए उसको अशरफ अली थानवी को इन लोग उसकी कुफ्र में और सील मार दिए। अशरफ अली थानवी, समझे, अशरफ अली थानवी के सफाई में जितने भी कोशिश किया वो सब गटर में चले गए। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सिखाया जो आप कुछ नहीं जानते थे। जी जी जी, सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फजल करम से सिखा दिया, जैसा कि सूरतुन निसा पारा नंबर 5 आयत नंबर 113 में व अल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा है, तुम्हें सिखा दिया जो कुछ तुम ना जानते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ऐलान किया कुरान में। जी जी जी, हाँ, ये जो आयत बात मैंने सुनी है आलिम साहब से, ये कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान किया है। जी जी हाँ, तो ये लोग गुस्ताखी बहुत बढ़ चढ़ के किए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म के बारे में। और हाँ, और हजरत ये सवाल वाला है, तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मान लो जाती इल्म गैब हम नहीं मानते हैं ना, नहीं मानते हैं। जाती इल्म, देखिए जाती इल्म गैब जो माने वो काफिर है। जी जी हाँ, और जो अताई इल्म माने वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक है वो। और इन लोग ना जाती मानते हैं ना अताई, दोनों ही नहीं मानते हैं। माजल्ला सुमा माजल्ला, समझे। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हैं कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं। जी जी हाँ, अल्लाह अकबर। बराहीन कातिया में साफ तौर पर लिखे हुए हैं, है ना। जी जी हाँ, ये तो उनकी किताब है, अल्लाह बचाए वहाँ भी देवबंदी से। देखिएगा बराहीन कातिया सफा नंबर 46 पर लिखा है। इनका बहुत बड़ा लक़ब दिया है खलील अहमद अम्बोठवी को। जी जी, है ना, बहुत बड़ा। हज़रत बक़िय्यतुस सल्फ, हुज्जतुल खल्फ, रासुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन, ताजुल उलमा कामिलीन, ऐसा लक़ब दिया है बेवकूफ को। और कह रहा है कि वो क्या लिख रहा है, खुद फ़ख्रे आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वल्लाहु ला अदरी मा यफ़अलु बी वला बिकुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा। ये उन्होंने हदीस कोट करते हुए आगे लिखता है, शेख अब्दुल मुहक्किक रिवायत करते माने और हदीस बयान करते हैं, हालांकि झूठ बयान किया है ये। हजरत शेख अब्दुल हक साहब कुछ नहीं बयान किए हैं, सब किसी किताब में मौजूद नहीं है। क्या लिखता है ये, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, जिनको तमाम मसालिक और मकातिब के फिक्र के लोग मानते हैं इसको, है ना। वो रिवायत करते हैं कि मुझको दीवार के पीछे का इल्म नहीं,
बताइए। माशाअल्लाह, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा फरमाए हैं कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं? ये तोहमत बांधा है ये लोग। जी बेशक तोहमत, समझे, तोहमत बांधा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। पूछिए इन लोगों से, पूछिएगा देवबंदी हजरात से कि बताओ ये हदीस कहाँ पर है कि मुझको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हैं मुझको दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसके घर के इल्म गैब सुनेंगे ना तो आपको हंसी आएगी। जी हाँ, वक्तों के अपने घर के पीछे के लिए कहता है, दारो दीवार के बात रही नहीं तो ये सवाने कासिमी हिस्सा 2 सफा नंबर 73 है। कासिम नानतवी के मुतालिक किताब लिखी गई है, मुनाजिर हसन गिलानी साहब लिखे हैं देवबंदी। यही दीवान जी देवबंद के रहने वाले थे और बकौल मौलाना तैयब साहब देवबंद में हजरत वाला की खानगी और जाती उमूर के ताल्लुक उन्हीं से था। लिखता है, साहबे नसब बुजुर्ग थे, अपने जमाना मकान के हुजरे में जिक्र करते थे। मौलाना हबीबुर रहमान साहब साबिक मोहतमीम दारुल उलूम देवबंद फरमाया करते थे कि इस जमाना में कश्फी हालात दीवान जी की इतनी बढ़ी हुई थी कि बाहर सड़क पर आने जाने वाले नजर आते थे। दरो दीवार का हिजाब उनके दरमियान जिक्र के वक्त बाकी नहीं रहता था। बताइए, ये देवबंदियों का बुजुर्ग दीवार के पीछे भी देख रहा है, उनको वही। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा है, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। बताइए, देवबंदियों को चमार से ज्यादा जो जलील है, अक्ल है इसको? नहीं है। इसका अक्ल कैसा है, कैसा बयान किया अशरफ अली थानवी? अशरफ अली थानवी क्या बोले आपको बताया ना मैं? गधे के आजरे तनासुल के जैसा है उन लोगों का। सही कहा है उन्होंने। एक तरफ देखिएगा, रशीद अहमद गंगोही फतवा देता है फतवा रशीदिया में सफा नंबर 206 में, जो शख्स अल्लाह जल्ला शानुहु के सिवा इल्मे गैब किसी दूसरे को साबित करे वो बेशक काफिर है। उसकी इमामत और उसके मेल जुल मोहब्बत मुअद्दत सब हराम है। फतवा रशीदिया सफा नंबर 206। बताइए, अशरफ अली थानवी हिफ्जुल ईमान में ये माना है कहा कि बराहीन कातिया में 125 सफा नंबर में देखिएगा, हिफ्जुल ईमान में इस अमर को तस्लीम किया गया है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब बाताए हासिल है, बाताए इलाही हासिल है। चुनांची इस बारे में जी यानी ये देवबंदियों का फतवा मौलवी रशीद अहमद गंगोही का फतवा मौलवी अशरफ थानवी पे आया ना फिर। हाँ, मौलवी अशरफ अली थानवी पर लग गया कुफ्र का फतवा। इसके कुतुबुल इरशाद के फतवे से अशरफ अली थानवी काफिर हुआ या नहीं? आप इंसाफ से बताइए। बेशक काफिर हुआ, काफिर हो गया, इसे ही काफिर हो गया, उसके घर ही से काफिर होता है। और अशरफ अली थानवी तो ऐसा इल्मे गैब बयान किए हैं अरवाए सलासा में सफा नंबर 201 हिकायत नंबर 253। अशरफ अली थानवी क्या लिखता है, मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने फरमाया, राव अब्दुल रहमान खान साहब पंजलासा पंजाब में हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और बड़े जबरदस्त साहबे कश्फ व हालात थे। कश्फ की ये हालत थी कि कोई लड़का लड़की के लिए तावीज मांगता, यानी अभी हमल भी नहीं हुआ है, उसको लड़का लड़की जिसका बेटा बेटी नहीं होता था ना, उसको तावीज मांगता तो बेतकल्लुफ फरमाते, जा तेरे लड़का होगा या लड़की होगा। लोगों ने अर्ज किया, लोगों ने अर्ज किया, देवबंदी पूछे, लोगों ने अर्ज किया, हजरत ये कैसे आप बता देते हैं? फरमाया, क्या करूं, बेहिजाबन मौलूद की सूरत सामने आ जाती है, अभी हमल भी नहीं है और वो बच्चे की सूरत अभी जो दुनिया में वजूद जिसकी नहीं हुई है उसकी सूरत ये देवबंदी मुल्ला देख करके बता रहा है लड़का होगा या लड़की। बताइए, और कुरान ऐलान करता है 5 चीजों का इल्म किसी को नहीं है कह करके बगैर दिए हुए, और रसूल के लिए नहीं मानते हैं ये, जिसे कुरान सूरतुल लुकमान आयत नंबर 31 और 34 में देखिएगा, आपको मिल जाएगी। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअति व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम मा तक्सिबु गदन व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर।
देवबंदी तर्जमा करता, खुद देवबंदी करता है, बेशक अल्लाह ताला ही के पास कयामत का इल्म है, वही बारिश नाजिल फरमाता है और माँ के पेट में जो है उसे जानता है, कोई भी नहीं जानता कल क्या कुछ करेगा और ना किसी को ये मालूम है कि इस जमीन में मरेगा। याद रखो अल्लाह ही पूरे इल्म वाला और सही खबर वाला है। बताइए ये देवबंदी कैसे खबर दे रहा है कि अभी जो वजूद भी नहीं आया। यही इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लोग नहीं मानता। हाँ, और अपने लिए मानता है, और अपने लिए मानता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे। फतवा रशीदिया में सबक दिया है। और ये अशरफ अली अपने बुजुर्गों के लिए साबित कर रहा है वही इल्म को। तो बताइए ये रशीद अहमद गंगोही के फतवे से ये अशरफ अली थानवी इन लोगों का मुजद्दिद काफिर हुआ या नहीं? एक नंबर का सड़ा हुआ काफिर हो गया ये तो, समझे? अजीब तमाशा है, जब इन लोग को बात करते हैं ना तो इन लोगों की चड्डी उतर जाती है और देवबंद और रायबंद में दौड़ करके अंदर जा करके दबक जाता है। लेकिन यही देखिएगा, ये खलील अहमद अम्बूटी शैतान मरदूद है ये लोग। क्या कहता है, अलहासिल गौर करना चाहिए, शैतान व मलिकुल मौत का हाल देकर इल्म मुहीत जमीन का फखरे आलम को खिलाफे नुसूस कतिया के बेला दलील महज प्यासे फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है, पूछता है। और आगे लिखता है शैतान और मलिकुल मौत को ये उसात नस से साबित है। यानी शैतान का इल्म उसाते इल्म का कहाँ से साबित है? नस से, यानी कुरान से साबित है। कहता है फखरे आलम की उसात, फखरे आलम की उसाते इल्म कौन सी नसे कती है कि जिसका तमाम नुसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है। माअज़ल्लाह रब्बिल बराइन कातिया सफा नंबर 55। हाँ, तो एक किताब का फोटो मेरे ऊपर भेज दो, ये अपने वीडियो इबारत पर ही ना वो। जी मैं जरूर डाल दूंगा। ये शैतान के लिए इल्म को साबित कर रहा है, कुरान से साबित है कर रहा है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसाते इल्म अगर मानोगे तो शिर्क हो रहा है। बताइए शिर्क कर रहा है उससे। तो बताइए ये शैतान के लिए उसाते इल्म मान करके शिर्क किया कि नहीं ये अंधा? जी हुआ बेशक। वो खुद के तहरीरात से, खलील अहमद अम्बूटी साहब खुद के तहरीरात से काफिर है, बेशक काफिर है। तो यही देवबंदियों को हम बताते हैं, दर्श देते हैं कि तुम अपने इन 4 बुजुर्गों को जो पकड़े हो, जिसको बुजुर्ग जानते हो, वो जहन्नमी कुत्ते हैं, उससे बाज आ जाओ और तौबा करके मुसलमान बनो। हम दावत देते हैं इन लोगों को, फिर भी बताते हैं। लेकिन इन लोगों की अक्ल कैसे है? अशरफ अली थानवी के गधे के अजवे के तनातुर के जैसा है। इसलिए इन लोग सुधरेगा नहीं, जहन्नम का ईंधन बन के है। इन लोग का बड़े बड़े मुफ्ती देवबंद और रायबंद में बंद हो जाता है और भागते फिरता है कि क्यों ऐसा मौलाना जसीम अख्तर दौड़ा दौड़ा के कूटते हैं का करके इन लोग भागते रहता है। और अभी मैं इनके 15 मुफ्ती से अभी ताल्लुक किया। कोई बहाना बना रहा है खाना खा रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं बाद में बात करूंगा, कोई कह रहा है कि यहाँ मैं हूँ अभी बात नहीं कर सकता, है ना। इन लोग को बड़े बड़े, और मुफ्ती उमैर कासिमी देवबंदी को भी क्या किया तो स्विच ऑफ कर दिया वो जो आरिफ हक्कानी को पहचान दो। आरिफ हक्कानी को भी पहचानता हूँ, इंशाल्लाह उसकी भी कुटाई होगी, बेफिक्र। उसके मेरे पर भेज दो जो यूट्यूब चैनल पे। इंशाल्लाह कूटेंगे, कल बात होगी, दिन में बात करूंगा उससे, उसकी गिरफ्त अजीम करूंगा इंशाल्लाह। देखिएगा, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम देवबंदियों को राह रास्त में ले आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन जहन्नमी कुत्तों और सुअरों से महफूज रखे, समझे, तमाम मुसलमानों को। आमीन। ठीक है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।